Assalamu alaikum, grade 10 students, mathematics 4024. I am back with another video on further trigonometry. This time we will be solving some past paper questions. And you guys know that further trigonometry is all about solving non-right angle triangle. And the technique which we use in further trigonometry to find out the missing angle and the missing side is the sine rule and the cosine rule. So it is very much important to understand the application of sine rule and cosine rule. Let's just discuss the application first. When we discuss sine rule, I told you that we can apply sine rule in two conditions. The first one was when there are two angles and one side given, and the other condition was when you have two sides and one angle given, and that angle should be a non-included angle. This was the application of sine rule. And the application of cosine rule was that we can apply cosine rule when we have three sides. And the second application was when we have two sides and one angle, and that angle should be the included angle. Included angle is that angle which is forming in between the two given sides. दो given sides के दरमियान जो angle बनता है उसको हम included angle कहते हैं. और included angle के अलावा जो बाकी दो angles होते हैं वो non included angle होते हैं. तो साइन रूल के लिए हमें नॉन इंक्लूडेड एंगल को समझना है और कोसाइन रूल के लिए हमें ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज दिस इंक्लूडेड एंगल. Because the application is very important, sometimes you have to apply sine rule, sometimes you have to apply cosine rule to find out the missing data. So starting with the first question, this question is from June 2004. This is a paper 2 question. P2 का question है, question number 9. इस question में we have a non-right angle triangle. We have a diagram. Diagram 1 shows a triangle that is ABC, in which AB is equals to 7 centimeter. AB की जो length है वो 7 centimeter है और the length of AC is 8 centimeter. The length of AC is 8 centimeter and the angle BAC. BAC means starting from B going to A and then C, this angle. Talking about this angle BAC, this angle is given as 120 degrees. In the first part, we have to show that the length of BC, the side BC, the length of side BC is coming out to be 13 centimeter. We have to show that. And in the second part, we have to find the area of the triangle ABC. So basically it is a 4 mark question and the calculator is allowed क्योंकि आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में साइन और कोसाइन आता है तो रेशियोज निकालने के लिए we will be using the calculator. So starting with the first part is you have to show that the length of BC is 13 centimeter. मतलब आपको आंसर दिया हुआ है, आपको आपको ये बताया जा रहा है कि जो BC है इसकी लेंथ 13 सेंटीमीटर आ रही है. यू हैव टू शो इट, यू हैव टू शो इट बाय योर कैलकुलेशंस. इसके 2 मार्क्स हैं. तो सिंस दिस इज अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में वी आर आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड, तो हमेशा जो है वो हमें साइन रूल और कोसाइन रूल की मदद जो है वो लेनी पड़ेगी. बट वी हैव टू आइडेंटिफाई विच रूल वी शुड अप्लाई. लुकिंग एट द फिगर केयरफुली आई कैन सी दैट देयर आर टू साइड्स. मेरे पास दो साइड्स गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है, मतलब इंक्लूडेड एंगल गिवन है. ये जो दो साइड्स गिवन है इनके बीच में एक एंगल बन रहा है 120. इसका मतलब है दिस एंगल इज कॉल्ड द इंक्लूडेड एंगल. और व्हेन टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल इज गिवन आई ऑलवेज गो फॉर कोसाइन रूल. इसका मतलब है कि मुझे यहाँ कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा. आई हैव टू राइट द कोसाइन रूल. और मैं लेबलिंग नहीं कर रहा, आई विल यूज द पैटर्न जो मैंने पैटर्न क्लास में डिस्कस किया था, जो पैटर्न हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम जो है वो कोसाइन रूल को लिखने की कोशिश करेंगे. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट्स आर नेवर सेम. अल्फाबेट्स कभी एबीसी होंगे, कभी एक्सवाईजी होंगे, कभी पी क्यू आर होंगे. तो यू डोंट हैव टू गेट इनटू द अल्फाबेट्स. आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए और पैटर्न के हिसाब से जो है वो आप you will write the cosine rule. So the pattern was that since we have to find the length of BC, so I will start off with BC. So I will just write BC whole square. मुझे पता है कि cosine rule में square आता है. And the sides which are other than BC, जो BC के अलावा sides थी उनके squares जो है वो add हो जाते थे. So I will just write 7 square and then plus 8 square. और मुझे पता था उसके बाद मैं नेगेटिव साइन यूज करता हूँ. देयर इज अ नेगेटिव साइन, देन कम्स अ 2. और उसके बाद ये जो दो साइड थी ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाती थी, ये प्रोडक्ट में आ जाती थी. तो आई विल राइट 7 इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन आई विल राइट 8 इन द सेकंड ब्रैकेट एंड देन आई विल क्लोज द ब्रैकेट. और फिर सिंस ये कोसाइन रूल है तो आई हैव स्टार्टेड विद BC. मैंने BC से स्टार्ट किया तो मैं इसके सामने वाला एंगल पे ही इसको एंड करूंगा. तो दिस इज BC, इसके सामने वाला एंगल 120 है जो मुझे गिवन है. तो आई विल एंड एट 120 डिग्रीज. नाउ आई विल यूज द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. मैं कैलकुलेटर की मदद से I will find BC square.
this will be 49, 7 square will be 49, and this will be plus 8 square means 8 multiplied by 8, that is equals to 64. And then I have to multiply all of these. मुझे इन सबको multiply करना है, तो I will make a bracket like this ताकि confusion ना हो, क्योंकि students काफी confuse होते हैं और उनको ये समझ नहीं आता कि ये multiply करने कैसे. तो you will multiply all of them together और उसके बाद आप minus sign के साथ this minus will be आउटसाइड और फिर आप इन चारों को जो आप मल्टीप्लाई करोगे उसका आप आंसर लिख दोगे. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द cos 120. cos 120 प्रेस किया मैंने और उसके बाद मैंने इक्वल्स टू प्रेस किया, तो मेरे पास जो डेसिमल में आंसर आ गया दैट इज -0.5. देन आई विल इसको मल्टीप्लाई मैं करूंगा 8 के साथ, देन आई विल मल्टीप्लाई इट विद 7 एंड देन आई विल मल्टीप्लाई इट विद 2. इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल्स टू दबाऊंगा, तो मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 56 -56. सो आई विल जस्ट राइट इट इन द ब्रैकेट, क्योंकि दो माइनस है तो आई विल यूज अ ब्रैकेट. मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया और फिर मैंने जो है वो ब्रैकेट क्लोज किया. नाउ आई हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई विल जस्ट ऐड देम. मैं जल्दी से इनको ऐड कर लेता हूँ. 49 प्लस 64 प्लस 56 will give me 169. ये मुझे टोटल मिल जाएगा 169. एंड सिंस आई हैव टू फाइंड BC पे स्क्वायर है, तो आई हैव टू रिमूव दैट स्क्वायर, और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आई नो दैट आई हैव टू टेक द स्क्वायर रूट. मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और जब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो उसके बाद मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 13, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13. तो दिस इससे मैंने प्रूव कर दिया अपने फर्स्ट पार्ट का कि द लेंथ ऑफ BC इज कमिंग आउट टू बी 13 सेंटीमीटर. तो ये थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन भी करके दिखा दी, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं. तो ये मैंने एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व भी कर दिया. यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू यूज अ कैलकुलेटर. जब कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो तो मेक श्योर यू यूज ब्रैकेट्स, क्योंकि कैलकुलेटर जो है उसको बॉडमास का रूल जो है वो समझ नहीं आता है. समटाइम्स हम बहुत सारे ऑपरेशंस को विदाउट ब्रैकेट्स कैलकुलेटर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो गलत आ जाता है. तो ये चीज़ स्टूडेंट्स को समझनी है कि कैलकुलेटर जो है वो बॉडमास का रूल नहीं समझ सकता. तो यू हैव टू यूज अ ब्रैकेट. अगर आप ये पूरा का पूरा एक साथ कैलकुलेटर में पुट कर रहे हो तो जस्ट पुट अ ब्रैकेट आफ्टर माइनस और उसके बाद इंशाल्लाह आपका आंसर जो है वो गलत नहीं आएगा. जस्ट मूविंग ऑन टू द ये सेकंड पार्ट देख लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बहुत इजी है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी याद है और उसकी भी हमने एप्लीकेशन डिस्कस की थी. लेट्स जस्ट डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ दैट एरिया फॉर्मूला एज वेल. एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए भी वी नीड टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल. सो all the data is given, so we will just use the formula. The formula for the area of triangle is we have to write half in the front and then we have to write the two sides. The two sides are 7 and 8. So the final answer is coming as area is equal to 25.25 centimeter square, correct to 4 significant figures, or you can say that correct to 2 decimal places. मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया. तो ये जो था बेसिकली दिस वाज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको पता है यू नीड द फॉर्मूला, और फॉर्मूला उसके पास होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स जो गिवन है और देन साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस एरिया फॉर्मूला यू नीड टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल. तो एप्लीकेशन अगर समझ में आ जाए तो उसके बाद फॉर्मूला यूज करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 8A. 8A में हमने जो ऑब्ट्यूज एंगल के रूल्स पढ़े थे, ऑब्ट्यूज एंगल के लॉज जो हमने पढ़े थे साइन और कोसाइन के, उसकी एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन है. और दिस इज अ पेपर 1 क्वेश्चन और इसमें जो है वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है. इन द डायग्राम BCD इज अ स्ट्रेट लाइन. दिस BCD इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन एंड यू नो दैट जब भी स्ट्रेट लाइन की बात आ जाती है तो इसका मतलब है वो हमें बताने की कोशिश कर रहा होता है कि स्ट्रेट लाइन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका मतलब है दिस कंप्लीट एंगल इज 180. BC is equal to 5 centimeter. This length is 5 centimeter. The length of AB is 12 centimeter and the length of AC is 13 centimeter. This is basically a right angle triangle and we are asked to find two parts हैं इसके. one part जो है वो मार्क के दो parts हैं. In the first part we have to find the value of 10 BAC. We have to give our answer in fractions और हमें find out करना है 10 BAC. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है. तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम B गोइंग टू A एंड देन सी. इसका मतलब है ये छोटे वाले एंगल की बात कर रहा है. दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल और हमें इसके रिस्पेक्ट से अपना रेशियो लिखना पड़ेगा. तो
द साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल जो है वो मेरी ऑपोजिट साइड हो जाएगी, और 90 के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज द हाइपोटेन्यूज, वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, एंड द रिमेनिंग साइड जो एंगल और 90 डिग्री को ज्वाइन करती है दैट विल बी द एडजेसेंट साइड। और सिंस आई हैव टू फाइंड दिस एंगल, आई विल जस्ट यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और उसने मुझसे 10 की वैल्यू पूछी है ना, उसने मुझसे बोला है 10 BAC, इसका मतलब है कि 10 जो है दैट इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 10 थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो आई जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। तो मेरे पास 10 BAC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड विल बी 5, क्योंकि मेरे पास ऑपोजिट 5 है, एंड द एडजेसेंट इज 12, सो 5 upon 12 will be my answer of the first part. In order to solve the second part में वो मुझसे कह रहा है you have to find the value of cos ACD. Cos ACD is this obtuse angle. Cos ACD जो है वो ये obtuse angle है, और obtuse angle को find out करने के लिए फिलहाल मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर मैं ये acute angle find out कर लूँ, अगर मैं ये acute angle find out कर लूँ cos का, तो I know that there is a relation between the acute and the obtuse angle. तो मैंने जो है वो रिलेशन एक्सरसाइज 8A में पढ़ा था, जिसको मैंने ऑब्ट्यूज लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो याद किया था, और वो ये था कि कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स कॉस ऑफ अक्यूट एंगल। तो अगर मैं ये अक्यूट एंगल फाइंड आउट कर लूँ कॉस का, तो मुझे सिर्फ उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। तो मैं क्या करूंगा, आई विल फर्स्ट अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉस ऑन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लेबल करना पड़ेगा। तो मैं जो है वो यहाँ इसको जो है वो डिफरेंट कलर से लेबल कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिंस आई हैव टू फाइंड दिस एंगल, तो ये वाला एंगल के रिस्पेक्ट से ये वाली जो साइड हो जाएगी दैट विल बी माय ऑपोजिट साइड, तो इसको मैं स्मॉल ओ लिख देता हूँ। और ये 90 वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज रहेगी, दिस विल बिकम माय एडजेसेंट साइड। और मुझे पता है कि कॉस जो है दैट इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का जो रेशियो है वो मैंने याद किया है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कॉस विल बी इक्वल्स टू, और कॉस ये वाला एंगल कौन सा होगा, दिस एंगल विल बी ACB। तो कॉस ACB विल बी इक्वल्स टू, मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ कि कॉस of angle ACB, cos of angle ACB will be equals to adjacent upon hypotenuse। adjacent side जो है वो मेरे पास हो जाएगी, मैंने ग्रीन से लिखी है 5, और hypotenuse जो है वो मेरे पास हो जाएगी 13। so cos of acute angle basically 5/13 आ रहा है। cos of ACB is basically the cos of acute angle जो ये वाला बन रहा है, तो this is coming out to be 5/13। और अगर इस acute angle को मुझे obtuse angle में चेंज करना है, तो I just have to multiply it with a negative sign, क्योंकि लॉ कहता है कि cos of obtuse is equals to minus times cos of acute। so if I have to convert this angle into the obtuse one क्या हो जाएगा, obtuse one will be ACD। so obtuse one will be ACD, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I just have to multiply it with a नेगेटिव साइन, तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू -5/13। Moving on to the last question of this video, we have a question. This is basically a paper 2 question, and this question is basically of 8 marks, and further trigonometry का ये question है 8 marks का है, paper 2 का question है। इसमें we have a park, हमारे पास एक पार्क है PQRS, this is a park, and this P and R is basically the footpath। ये footpath है from one corner to the another corner, और इस फुटपाथ की वजह से वी हैव डिवाइडेड आवर पार्क इनटू 2 ट्रायंगल्स। हमने अपने पार्क को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है। द डायमेंशंस आर गिवन इन द फिगर, सारी डायमेंशंस फिगर्स में दी हुई हैं। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड एंगल QPR। we have to find angle QPR। this is a non right angle triangle, so we will be using sine and cosine rule। वो हमें जो है वो खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है। so before the decision कि कौन सा रूल अप्लाई करना है, we will first mark the angle। what is this angle? this angle is QPR, means it is starting from Q, it is going to P, and then it is going to R, means we have this angle, we have to find this angle। and since we have to find this angle, we have to focus on this triangle। ये इस triangle पे हमें focus करना पड़ेगा। तो जब मैं इस triangle पे focus करूंगा, तो मैं देख सकता हूं कि I have 3 sides given। मुझे तीनों की तीनों sides इस triangle की given है, and no angle is given। so I have to decide कि कौन सा rule है जब मैं apply करता हूं when 3 sides are given। तो the answer is cosine rule। I have to apply the cosine rule to find out this angle। मुझे ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए कोसाइन रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी।
because the application of cosine rule is when you are provided with the three sides, you can use the cosine rule. And now I have to write the formula क्योंकि वो मैंने याद नहीं किया हुआ और लेकिन मुझे पैटर्न पता है. I will use that pattern to write the formula. और वो पैटर्न क्या था कि since I have to find angle PR, तो सबसे पहले मैं cos of QPR लिखूंगा. cos of QPR लिखने के बाद जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो सब्ट्रैक्शन में चले जाती है और जो बाकी दो साइड्स होती हैं वो एडिशन में आ जाती है. ठीक है, दिस इज द पैटर्न. पैटर्न क्या था? द एंगल विच आई हैव टू फाइंड आउट, द साइड विच इज ऑपोजिट टू दैट एंगल विल बी सब्ट्रैक्टेड. तो 91 का स्क्वायर जो है वो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा और जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं 64 एंड 53 दैट विल बी एडेड. ये स्क्वायर्स के साथ ऐड हो जाएंगी. 64 स्क्वायर प्लस 53 स्क्वायर माइनस 91 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स जो दो फर्स्ट साइड होती है वही नीचे प्रोडक्ट में आ जाती है 64 और 53. ये मैंने पैटर्न याद किया था. पैटर्न यही था कि जिस एंगल को मुझे फाइंड आउट करना है उसके सामने वाली जो साइड है वो माइनस होगी और जो बाकी की दो साइड्स हैं वो ऐड हो जाएंगी स्क्वायर्स के साथ. तो 64 स्क्वायर प्लस 53 स्क्वायर माइनस 91 स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पहले 2 आता है और 2 के बाद वो दो साइड्स आती हैं जो ऐड हो रही होती हैं जो स्टार्ट में आ रही होती है. तो 64 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 53. जब आप न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी -1376 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विल बी 6784 and then you have to take the cos. आपको cos inverse लेना पड़ेगा in order to find the angle. So cos inverse लेने के बाद जो मेरे पास angle QPR आएगा that will be equals to 101.70 or you can also write it as 101.7 correct to one decimal place. तो चूंकि ये कोसाइन रूल है तो कोसाइन रूल में आपको पता है वी डोंट हैव टू चेक फॉर द अक्यूट एंड द ऑब्ट्यूज. साइन रूल में हम अक्यूट और ऑब्ट्यूज के लिए चेकिंग करते थे बिकॉज वी नो दैट साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट. क्योंकि ट्रायंगल का सम जो है वो 180 होता है टोटल, इसलिए हम जो है वो सिर्फ दो ही क्वाड्रेंट्स को देखते हैं. तो कोसाइन में जो है वो कोसाइन इज ओनली पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में तो वो नेगेटिव हो जाता है. इसी वजह से जो है वो मुझे कोसाइन रूल से जो मैं एंगल निकालता हूँ उसके लिए मैं चेक नहीं करता ये अक्यूट और ऑब्ट्यूज. तो जो भी एंगल आता है वो मेरा फाइनल आंसर हो जाता है. सो द एंगल ऑफ QPR इज कमिंग एज 101.7 degrees correct to one decimal places. Moving on to the second part. The second part is we have to find the value of angle RPS. RPS means starting from R going to P and then S. अब मुझे ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में. इसका मतलब है आई हैव टू फोकस ऑन दिस ट्राइंगल. अब मुझे इस ट्राइंगल पर फोकस करना है एंड ऑन लुकिंग एट द डाटा विच इज प्रोवाइडेड. इस ट्राइंगल में मुझे दो साइड्स और एक नॉन इंक्लूडेड एंगल गिवन है बिकॉज दीज आर द टू साइड्स. ये दो साइड्स हैं और इनके दरमियान का जो एंगल है ये कहलाता है इंक्लूडेड एंगल. तो मुझे ये इंक्लूडेड एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है. मुझे जो एंगल गिवन है वो वन ऑफ द नॉन इंक्लूडेड एंगल गिवन है जो कि 68 डिग्रीज मुझे गिवन है. तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ कोसाइन रूल तो यूज नहीं कर सकता क्योंकि कोसाइन रूल मैं उस वक्त यूज करता हूँ व्हेन आई हैव थ्री साइड्स. यहाँ थर्ड साइड तो है भी नहीं. और द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कोसाइन रूल इज दैट आई हैव टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल. तो इंक्लूडेड एंगल तो यहाँ मुझे फाइंड करना है, गिवन नहीं है. इसका मतलब है आई कैन नॉट यूज कोसाइन रूल. अब मेरे पास साइन रूल है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ. तो आई विल यूज द साइन रूल टू फाइंड आउट दिस मिसिंग एंगल. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइन रूल के लिए मुझे पता है कि ये वाली साइड मुझे गिवन नहीं है. तो मैं क्या करूंगा यहाँ जो है वो आई विल फाइंड आउट एंगल एस फर्स्ट. पहले मैं एंगल एस जो है वो पहले फाइंड आउट करूंगा और एंगल एस फाइंड आउट करने के बाद जब मुझे दो एंगल्स पता चल जाएंगे ट्राइंगल के तो आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज टू एंगल्स फ्रॉम 180 टू गेट द थर्ड एंगल. ठीक है. तो साइन रूल जो है वो मैं उससे डायरेक्टली मैं एंगल पी नहीं फाइंड आउट कर सकता बिकॉज द साइड विच इज ऑपोजिट टू एंगल पी इज नॉट गिवन. तो मुझे पता है साइन रूल में जो है वो वही दो साइड्स आती हैं, जो है वो एक साइड आती है और उसके सामने वाला एंगल आता है. तो यहाँ मुझे एंगल पी भी नहीं पता और उसके सामने वाली साइड भी नहीं पता. तो आई कैन नॉट अप्लाई साइन रूल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल पी. लेकिन आई कैन अप्लाई साइन रूल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस. जब मुझे एंगल एस की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं इन दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ताकि मुझे एंगल पी की वैल्यू पता चल जाए. सो आई विल यूज साइन रूल टू फाइंड आउट एंगल एस. और साइन रूल लिखने के लिए मैंने ये सीखा था कि एंगल एस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो साइन एस जो है वो ऊपर आ जाएगा और उसके सामने वाली साइड जो है वो नीचे आ जाएगी. तो आई विल स्टार्ट ऑफ विद राइटिंग लाइक दिस. तो यहाँ मैंने जो है वो साइन रूल अप्लाई किया. हम लोग जैसे साइन रूल अप्लाई करते थे हम बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं. तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद साइन एस. हम साइन एस से स्टार्ट करते थे क्योंकि हमें साइन एस जो है वो फाइंड आउट करना था. तो साइन एस एंड द साइन ऑपोजिट टू एंगल एस इज 53. सो साइन एस अपॉन 53 हो जाएगा. और उसके बाद मैं ये देखता था कि कौन सा ऐसा पेयर है जो मुझे गिवन है, एंगल भी गिवन है और उसके ऑपोजिट साइड भी गिवन है.
तो सिंस 68 इज गिवन और उसके सामने वाली साइड भी गिवन है, तो आई विल यूज साइन 68। तो साइन 68 विल बी इक्वल्स टू, सॉरी, साइन 68 अपॉन द साइड विच इज ऑपोजिट टू 68 इज 74, तो ये साइन 68 अपॉन 74 हो जाएगा। और फिर आई जस्ट हैव टू यूज द कैलकुलेटर, मुझे सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है, और आई हैव टू मल्टीप्लाई 53 विद साइन 68 एंड देन डिवाइडेड बाय 74, जिससे मेरे साइन की वैल्यू आ जाएगी 41.61। सिंस 41.61 और करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस मीन्स 41.6 क्यूट है, एंड मैंने इसको साइन रूल से निकाला है, तो मुझे इसको ऑब्ट्यूज भी चेक करना पड़ेगा। जब मैं 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 41.6 को, तो आई विल गेट 138.4। और मुझे पता है कि पहले से एक एंगल 68 तो गिवन है, और 138.4 को मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि अगर मैंने 138.4 ले लिया तो 68 प्लस 138.4 जो है वो ग्रेटर देन 180 आ जाएगा। और मुझे पता है कि ट्राइंगल्स का सम जो है वो ग्रेटर देन 180 नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। आई विल बी गोइंग ऑफ विद द अक्यूट वैल्यू, मुझे अक्यूट वैल्यू के साथ जाना पड़ेगा। और सिंस आई हैव द सेकेंड एंगल नाउ, अब ये 41.6 आ गया है, तो मैं इसकी जगह पे 41.6 लिख लूंगा। नाउ आई हैव द टू ट्राइंगल्स, नाउ आई हैव द टू एंगल्स, अब मेरे पास दो एंगल्स हैं, तो इसका मतलब है कि अब मुझे थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए जस्ट 180 में से इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो द थर्ड एंगल जो कि मुझे ओरिजिनली फाइंड करना था, एंगल आरपीएस, दैट इज कमिंग आउट टू बी 70.4, करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। लास्ट पार्ट में अगेन उसने मुझसे एरिया पूछ लिया है, ठीक है। अब ये 70.4 जो है, पहले मैं देख लेता हूँ एरिया किस ट्राइंगल का पूछा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर एस पूछा है उसने, तो इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर एस मतलब यही वाले ट्राइंगल का पूछा है। एंड नाउ आई हैव दिस एंगल, अब मेरे पास ये एंगल है जो कि 70.4 है। इसका मतलब है एरिया के लिए मुझे एक इंक्लूडेड एंगल और दो साइड्स चाहिए होती हैं। आई हैव द टू साइड्स नाउ, 74 और 53, और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है इंक्लूडेड एंगल, आई हैव दैट एंगल ऑल्सो, दैट इज 70.4। I just need to plug in the values. The area of triangle PRS will be equals to half multiplied by 53 multiplied by 74 multiplied by sine of 70.39 or 70.4, and your final answer of area of triangle PRS is coming out as 1847.3। and if you want to round it off, अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाह रहे हो टू द नियरेस्ट होल नंबर या टू द नियरेस्ट टेंस, तो इट विल बी 1850 मीटर स्क्वायर, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज ये जो लास्ट में जीरो आता है हम इसको एज अ सिग्निफिकेंट फिगर ट्रीट नहीं करते। इसका मतलब है कि इस फिगर में ये जो फिगर लिखी हुई है इसमें थ्री